رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ قوم ایک، مذہب ایک، سجدہ ایک ہستی کو، مانا خدا کے آخری نبی کو۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ماہ رمضان ایک انعام کی صورت ہمیں ملا ہے، جہاں ہم سمجھیں گے ایک دوسرے کے تقاضوں کو، جہاں ہم بانٹیں گے خوشیاں اور رونقیں۔ ناظرین آداب، ریاست کیرلا کے خوبصورت شہر کنور میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم کیرلا کے دو شہر یعنی کنور اور تلچیری میں ماہ رمضان کی سرگرمیوں کا جائزہ پیش کریں گے۔ جہاں تک کنور کی بات ہے، کنور شہر کی تاریخ کافی پرانی رہی ہے۔ 12ویں صدی سے اس شہر کے تعلقات عرب ممالک سے رہے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ارکل کے سلطانوں کی حکومت قائم تھی، یعنی کیرلا میں واحد مسلم حکومت کا پہلا صدر مقام کنور شہر ہی تھا۔ کنور شہر پر انگریزوں، پرتگالوں اور دیگر حکمرانوں کی حکومتیں رہیں۔ چلیے اس شہر کے سلسلے میں مزید جانتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شہر ماہ رمضان میں کس طرح دکھائی دیتا ہے۔ قدرت کے حسین، دلکش اور رنگین نظارے، پرکیف آب و ہوا، پربہار ڈھلانے، درختوں کی شاخوں پر پھلوں پھولوں کے چٹکتے لٹکتے غنچے، ساحل سے ٹکراتی سمندر کی موجیں، ہر سو تر و تازہ فضاؤں کے درمیان سانس لینے والا شہر کنور ریاست کیرلا کا چوتھا بڑا شہر ہے۔ کنور کو کننور بھی کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی یہاں دین اسلام کی آمد ہوئی۔ صحابی رسول حضرت مالک بن دینار اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کیرلا کے سمندری ساحل پر حضرت مالک بن دینار کے ساتھیوں نے جنوبی ہند کے اس حصے میں اسلام کی تبلیغ کا کام انجام دیا۔ ان میں کنور، تلچیری
اور چند دیگر شہر شامل ہیں۔ کنور کا جو ریلیشن شپ ہے وہ عرب سے ہے، 12ویں صدی سے، اور اس کے پہلے ایون 7 سینچری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے، جب جو مالک بن دینار اور ان کے جو ساتھی آئے تھے، اس میں ایک ساتھی جو پہلے یہاں پر لینڈ کیے تھے وہ ماڑائی میں ہیں، ماڑائی پڑینگاڑی میں، ماڑائی مسجد کے اندر ابھی بھی ان کا قبر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ Territory has got a heritage history of more than 1,000 years. 1,000 years. Before that, at the time of Malik Dinar itself, Muslims in Tellicherry. There are so many Muslims came to Tellicherry or converted. The local people converted to Islam at the time of Malik Dinar. Malik Dinar and his disciples came to Tellicherry, and they have spread the Islam. And the mosque in the masjid in the beach side, there is an old Juma masjid. That is more than 1,000 years. More than 1,000 years. Maybe it is the first Muslim masjid in Tellicherry. تلچیری شہر کنور سے 21 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ تلچیری اور کنور شہر کے تجارتی تعلقات عرب ممالک سے 12ویں صدی سے رہے ہیں۔ کیرالہ کے یہ علاقے مسالوں اور لکڑی کی پیداوار کے لیے مشہور ہیں۔ کنور کی خاص بات یہ ہے کہ کنور انڈیا کے اندر لاسٹ جو کنگڈم ہے، مسلم کنگڈم، وہ ارکل جو ہے کنگڈم ہے، جو کنور کے ہارٹ آف دا سٹی میں ہے۔ ابھی ارکل میوزیم آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ارکل کی خاص بات یہ ہے کہ چرکل ایک میوزیم تھا، وہ ایک مسلم نہیں تھا، وہ ہندو کنگڈم تھا۔ چرکل کے جو رانی ہے وہ ایک بار نہاتے وقت، اپنے پول میں نہاتے وقت وہ گر گیا پانی میں، تو اس کو بچانے کے لیے ایک سولجر تھا، سپاہی تھا، وہ کھود کر ان کو بچایا۔ تو ان کے جو ہے بدن میں جو باندھا ہوا جو کپڑا تھا وہ نکل گیا تھا رانی کا، تو انہوں نے باہر نکال کے ان کو ایک کپڑا دے دیا۔ وہ جب کپڑا انہوں نے لے کر جب پہنا، وہاں کے پجاری اور وہاں کے جو ہندو لیڈرز نے بتایا کہ یہ اصل میں شادی ہو چکا ہے، کیونکہ کپڑا دینا ہی شادی ہے۔ تو ان کو کپڑا دے دیا، انہوں نے پہن لیا تو شادی ہو گیا۔ تو ایک مسلم فیملی سے چرکل کنگڈم کا شادی ہو گیا۔ یہ اس وجہ سے ارکل جو ہے، ارکل اور چرکل دو الگ الگ جو ہے کنگڈمز بنی۔ ارکل کنگڈم آج بھی، ارکل کے جو بیوی ہے وہ زندہ ہے، اور آج بھی ایک کوئین کے طرح جو ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ ارکل سلطنت ایک چھوٹے سے خطے پر قائم تھی، لیکن کافی اثر رکھتی تھی۔ ارکل راجاؤں کے خداداد سلطنت کے بانی حیدر علی اور ٹیپو سلطان سے گہرے مراسم تھے۔ اس دور کے کارناموں اور ترقیاتی منصوبوں کی جھلک کنور میں موجود ارکل میوزیم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں ارکل میوزیم میں۔ ارکل کے سلطانوں نے کیرلا کی تعمیر اور ترقی میں کافی اہم رول ادا کیا ہے۔ میوزیم میں اس دور کی یادگاروں کو محفوظ کیا گیا ہے۔ ارکل کے سلطانوں کی حکمرانی ہندو مسلم اتحاد کی خوبصورت مثال تھی۔ میوزیم میں ارکل سلطانوں کے اسلحے، برتن، عربی میں تحریر کردہ مخطوطات موجود ہیں۔ سن 1777 اور 1780 میں ارکل کے سلطانوں نے انگریزوں اور پرتگالوں کے خلاف لڑائی میں مدد کے لیے ترکی کی دولت عثمانیہ کو خطوط لکھے تھے۔ ملبار خطے کی تعمیر اور ترقی میں ارکل کے سلطانوں اور بیویوں نے اہم رول ادا کیا ہے۔ سب سے بڑے کنٹریبیوشن یہ تھا کہ پورچوگیز کنگڈم کے خلاف کو پورچوگیز جو لوگ انٹروڈ کرنے کے لیے آئے تھے انڈیا کیرلا کے اندر، ان کو ریزسٹ کرنے میں، ان کو یہاں سے جو ہے نکالنے میں ارکل کنگڈم کا بڑا رول رہا ہے۔ انہوں نے ایک بڑا سپاہی، ایک بڑا جو ہے فوج کو تیار کر کے انہوں نے ایک زبردست ریولٹ شروع کر دیا تھا، جس وجہ سے پورچوگیز کو یہاں سے جانا پڑا۔ یہ ارکل کا سب سے بڑی بات ہے۔ اور ارکل بیوی اور ارکل کنگڈم نے یہ کیا تھا کہ سب سے بڑا جو پورٹ ہے
मलबार रीजन का, वो यहाँ पर बनाया था। अभी भी वो उसको रेनोवेट करके जो है आप देख सकते हैं, जो है मापला बे यहाँ पर देख सकते हैं, मापला बे जो असल में अरक्कल किंगडम का कंट्रीब्यूशन था। और यहाँ पर डेवलपमेंट आप देख सकते हैं कि कन्नूर सिटी का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसका सेंट्रल जो ग्रुप है वो जो है जो हिस्ट्री है वो अरक्कल किंगडम से जुड़ा हुआ है। साल 2011 की मर्दमशुमारी के मुताबिक कन्नूर में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 38% है। इस शहर में कदीम मंदिरों के साथ कई सौ साल पुरानी मसाजिद भी मौजूद हैं। साबिक मरकजी वजीर मरहूम ई अहमद समेत केरला के कई अहम सियासतदानों का ताल्लुक कन्नूर से रहा है। Motherland of Mr. E. Ahmad just passed away, the famous Indian politician. He is the native of, his native is Kannur city. His dead body is covered here in city Juma Masjid. It is the real birthplace and his real place Kannur city. It is known as Kannur city. In earlier times it is near the seaside. Through Arakkal, all the rulers are here. To the sea, all the business came here. It is known as Kannur city. Now later, it is become as old one, and the new city is there. माह रमज़ान की आमद के साथ ही कन्नूर शहर की कैफियत बदल जाती है। मसाजिद के अतराफ गहमा गहमी बढ़ जाती है। गली कूचों में सहरी और इफ्तार की सरगर्मियां देखने को मिलती हैं। यहाँ के मुसलमान रोज़मर्रा की मसरूफियात को कम करते हुए इबादतों के एहतमाम में मशगूल रहते हैं। कन्नूर शहर में तकरीबन 30% मुसलमानों की आबादी है। जो ही रमज़ान का आगाज़ होता है, इस शहर में एक ख़ास रौनक देखने को मिलती है। जगह जगह फर्जंदान तौहीद अक़ीदत के साथ इबादतों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। चंद एक अफराद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका ETV में इस्तकबाल है। कैसे माहौल है यहाँ का माहौल किस तरह का है? अल्हम्दुलिल्लाह, इधर ये रमज़ान में बहुत अच्छा माहौल है। अभी देखो, अब सब एक एक जगह पे जाएगा तो मस्जिद है, मस्जिद में पूरा अभी अमल में चलता है सब। अभी रोज़ा खोलने का टाइम हो गया, अभी उस वक्त ये सब मस्जिद में जाएगा तो आपको दिखा सकते हैं, आपको देख सकते हैं। ये सब जगह पे ऐसी होता है। अभी सब बच्चे लोग भी है, सब आएगा। अभी जमात में पूरा मस्जिद पूरा फुल रहता है, सब जगह पे ऐसी है। अल्लाह का दुआ का टाइम है। हम लोग मुसलमान हैं। ये पहले का सिटी है, यही है। ये जुमा मस्जिद है, पहले का जुमा मस्जिद है। People gathering in the masjid, kids, every range of people gathering in masjid. All are filled with iman. Lot of people for namaz and qiyamul layl and good qira'a. All imams are afil. They are giving good qira'at to the people every day. This masjid is very old, even though it is furnished very well. People maintaining this masjid and everything's in very well. Okay. दूसरी जानिब शहर तलचेरी में भी कई पुरानी और नई मसाजिद आबाद हैं। इस शहर में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 35% है। माह रमज़ान में इस साहिली शहर का मंजरनामा भी रूहानी, ईमानी और नूरानी फिजाओं से मुअत्तर रहता है। इस वक्त हम तलचेरी की ओरतल जुमा मस्जिद में मौजूद हैं। कई मुसल्लियान हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए जानते हैं किस तरह रमज़ान यहाँ पर मनाया जा रहा है। फरमाइए, क्या माहौल है रमज़ान का तलचेरी में? रमज़ान इधर सुबह तक चालू है। सब लोग इधर गड़ा है, रेस्ट करते हैं। रमज़ान में रात को तरावी गाते हैं। यह पुराना मस्जिद है, 250 ईयर्स हो गया। सब लोग इधर रमज़ान को सब लोग इधर खाना इधर ये लोग फ्री देते हैं। അന്ന് അത്ര ദീർഘവീക്ഷണത്തോട് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പള്ളി ഇത്രയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സഫായിട്ട് മാറാൻ കാരണം. അതുകൊണ്ട് ഈ റമദാനിക്ക് എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് अल्लाह अनुग्रहिकटे। शुक्रिया। कैसे लग रहा है रमज़ान में, किस तरह का माहौल है यहाँ पे? रमज़ान में अच्छा है। एक मस्जिद में
नमस्कार करते हैं, बहुत संतोष है। इधर ठंडी नहीं है, ठंडी ज़्यादा आता है, गर्म का इधर मस्जिद में गर्म नहीं है, इधर नमस्कार आने का टाइम गर्म नहीं आता है, ठंडी आता है। सुबह कैसे लाइफ स्टाइल शुरू होती है? सुबह कितने बजे लोग यहाँ पर उठते हैं रमज़ान में? 4:30 बजे 5 बजे का इधर आ रहे हैं। अभी सुबह नमाज के बाद में इधर घर में जा रहे हैं। रमज़ान का बहुत शुक्रिया। ओके, सहरी और इफ्तार का किस तरह इंतज़ाम होता है? इस मैं इधर ज़्यादा नहीं आ रहा है, मैं घर में जाता है। इस साल बहुत आदमी लोग इधर रहते हैं। सब घर में ही बनाता है। ईद का दिन है ना, वो रात में उधर सहरी घर पे ही बनाता है। फिर 4:30 बजे यहाँ पे आता है, 5 बजे नमाज शुरू होता है। इंशाल्लाह उसके बाद थोड़ा कुरान गिरान पढ़ के घर पे जाएगा, अनेक दुकान पे जाएगा। कुछ काम करता है ना, काम लोग उधर ही जाएगा। केरला के मुसलमान अपनी मादरी ज़बान मलयालम में मजहबी तालीम हासिल करते हैं। अपनी इलाकाई शनाख्त के साथ इस्लामी जज्बे से सरशार रहते हैं। रमज़ान की आमद के साथ ये जज्बा और भी ईमानी कैफियत से लबरेज हो जाता है। अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर मलयाली मुसलमान हर नेक काम को अंजाम देने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। हर रंग में राजी बरज़ा हो तो मज़ा देख, दुनिया ही में बैठे हुए जन्नत की फिजा देख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और हम मौजूद हैं शहर तलचेरी में। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। केरला के साहिली शहर कन्नूर और तलचेरी में कई खूबसूरत मसाजिद हमें देखने को मिलती हैं। माह रमज़ान के दौरान मसाजिद के अंदर और मसाजिद के अतराफ गहमा गहमी बढ़ जाती है, मुसल्लियों की तादाद बढ़ जाती है। यहाँ सहरी और इफ्तार का मंजर भी काफ़ी निराला होता है। चलिए जानते हैं किस तरह सहरी और इफ्तार का एहतमाम शहर कन्नूर और तलचेरी में किया जाता है। वक्त सहर है, घर में एक दिलनशी नज़ारा पुरनूर हो गया है मंजर ये घर का सारा। सहरी जो कर रहे हैं मिलजुल के लोग सारे, अल्लाह का करम है बरकत है घर हमारे। केरला में सहरी और इफ्तार का एहतमाम पुरजोश अंदाज में होता है। घरों और मस्जिदों में मर्द और ख़वातीन रोज़े के अहम जुज़ सहरी और इफ्तारी के एहतमाम और इंतज़ामात को नेकी और खुशी का बाइस समझते हैं।
مساجد میں نماز عصر کے بعد افطار کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ مساجد کے احاطوں میں رضاکار افطار کے انتظامات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ افطار کی ٹیبلوں اور دسترخوان پر طرح طرح کے موسمی پھل، پوریاں، سموسے، بھجیا، چائے، لیموں کا شربت اور گنجی عام طور پر روزہ داروں کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ کنور کی سٹی جامع مسجد میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ افطار کا وقت قریب آ رہا ہے۔ مسجد میں چند رضاکار جو ہے روزہ داروں کے لیے افطار کا اہتمام کرنے میں مصروف ہیں۔ بتائیے افطار کے لیے کیا کیا چیزیں آپ دے رہے ہیں اور اس خدمت میں آپ کو کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے؟ دیکھو رمضان کھولنے کا دیتا ہے نا، اس لیے میرے کو بہت خوش ہوتا ہے۔ سب کو ایک ایک پیس پیکنگ کر کے دے دے گا سب کو۔ کیا کیا دیتے ہیں؟ یہ پڑمپوری، انکایا، کھجور ہے اور سموسا ہے، بونڈا ہے، سب کچھ، اور موسمبی ہے، ایپل ہے، اور پورے سب روزہ کھولنے کے لیے دیتا ہے۔ سب بہت آدمی لوگ آتا ہے ادھر۔ کتنے لوگ آتے ہیں؟ 100 کو اوپر ہر دن آتا ہے۔ ادھر سے بڑا مسجد ہے۔ انڈا کا بھی سموسہ دیتا ہے، یہ کیلے کا یہ دیتا ہے، یہ کھجور دیتا ہے، یہ موسمبی دیتا ہے، یہ بطیخ دیتا ہے، یہ سب روزہ کھولنے کا دیتا ہے۔ شربت بھی، چائے بھی، سب دیتا ہے۔ کنور کی کئی مساجد میں مغرب کی نماز کے بعد کھانے کا بھی خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ کئی افراد ایسے ہوتے ہیں جو خاموش انداز میں تن من دھن کے ساتھ روزہ داروں کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ بریانی، گھی رائس، گوشت، مرغ کا سالن اور طرح طرح کے کھانے روزہ داروں کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ شہر کے پرانے علاقے میں موجود مسجد محی الدین کے احاطے میں روزہ داروں کے لیے افطار کا وسیع تر انتظام کیا گیا ہے۔ افطار کا وقت قریب آیا ہے۔ افطار کے انتظامات کے لیے بڑی تعداد میں نوجوان یہاں پر مصروف رہتے ہیں۔ بتائیے کتنی خوشی ہوتی ہے جب یہ موقع آتا ہے؟ رمضان آنے کو بہت خوشی ہوتا ہے۔ 3 مہینے کے پہلے اپن ماشاءاللہ دعا کا اوپر چل رہا ہے۔ اللہ کا رحمت کا موسم میں رحمت بھی چل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی 8 سال ہو گئے چل رہا ہے، اچھا طرف سے چل رہا ہے۔ بچے ہونے دو، ماموں ہونے دو، امیر ہونے دو، غریب ہونے دو، سب باقی اپن ابھی تک کچھ پانی کس کو بھی نہیں بول کے نہیں دیا، اچھا طرف سے ان لوگ کو پیتا ہے جاتا ہے۔ مغرب نماز کا بعد پھر کھانے بھی دیتا ہے، اور سروس دیتا ہے، چائے دیتا ہے، اور بریانی، پھر پروٹا، پھر بیف کری، اور سموسا، چکن کری، ایسا آتا ہے، پتلی روٹی، گھی رائس اور بریانی، پورا پروٹا، ہاں روز کھاتا ہے۔ نماز پڑھتا، پھر کام جاتا، پھر دوپہر پڑھتا، پھر شام مغرب عشاء پڑھتا، تراویح پڑھتا۔ عبادت زیادہ کرنے کا ہے۔ مسجد میں سب کو، سب گھر میں بہت کھانا ملتا ہے، سب اچھا ہے، سب کو بھی اچھا ہے۔ اچھا ہے، اور رمضان میں بہت اچھا ہوتا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سب کو اچھا ہے، الحمدللہ، نماز اچھا ہے۔ شہر کنور اور تلچیری کو کیرالہ کا فوڈ کیپٹل کہا جاتا ہے۔ یہاں کے ملباری ذائقے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ان شہروں پر عرب ممالک کا خاصا اثر رہنے کی وجہ سے ملباری کھان پان بھی عرب ڈشوں سے ملتے جلتے ہیں۔ دعوت میں بلا لینا بستی کے غریبوں کو، دعوت میں بلا لینا بستی کے غریبوں۔ جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے، کنور کے پرانے علاقے میں رمضان فوڈ فیسٹیول کا انعقاد عمل میں آتا ہے۔
शहर कन्नूर में 50 से ज़ायद मस्जिदें हैं। तकरीबन तमाम मस्जिदों में इफ्तारी और सहरी का इंतज़ाम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मस्जिद मोहिउद्दीन में मगरिब की नमाज के बाद रोज़ादारों के लिए खुसूसी दावत का अहतमाम किया गया है। ये दावत जो है हर रोज़ हुआ करती है। पेट भर खाना रोज़ादारों को खिलाया जाता है और इसका इस पूरी खिदमत का मकसद यहाँ के रोज़ादार, यहाँ के साहब सरवत अफराद कहते हैं कि अल्लाह ताला को राज़ी करना है। इसीलिए इस तरह की खिदमत जो है तकरीबन तमाम मस्जिदों में देखने को मिलती है। कन्नूर सिटी में रमज़ान की आमद होटल मालिकों के लिए किसी जश्न से कम नहीं होती। होटल मालिकान अपनी आरजी दुकानों को खूब सजाते हैं। ग्राहकों का इस्तकबाल करते हैं और दिलो जान से उनकी खिदमत में रमज़ान की खुसूसी डिश पेश करते हैं। मछली से बनने वाले कई तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं। इन पकवान की मुनासिबत से खट्टे, नमकीन सलाद, तरह तरह के मशरूबात, आइसक्रीम, फालूदे रोज़ादारों की खिदमत में पेश किए जाते हैं। बारी डिशेस का जायका बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। चलिए जानते हैं ये डिश कैसे बनते हैं। बताइए आप क्या बना रहे हैं यहाँ पे? मैं बना रहा हूँ चिकन मुगलाई। चिकन मुगलाई किस तरह बनता है चिकन मुगलाई? चिकन मुगलाई ये तो दही से बनता है और कुछ पेस्ट होती है, वो पेस्ट से बनती है और बाकी कुछ स्पाइसी भी होती है, तो थोड़ा स्पाइसी भी होती है तो थोड़ा स्वीट भी होती है। ये खाना बहुत फेमस है हमारा इधर की। चिकन मुगलाई के बाद चिकन कबाब बनाते हैं और बीफ कबाब बनाते हैं, उसके बाद काढ़ा बनाते हैं। सब अलग अलग टेस्ट होती है। क्या सिर्फ रमज़ान में ये सब चीज़ें होती हैं? जी हाँ, सब रमज़ान पे ही होते हैं। रमज़ान के बाद फिर हमारी ढाबा है, वो ढाबा पे चलेगी। मुगलाई जैसे कबाब, स्प्रिंग और काढ़ा और स्प्रिंग और बीफ और मटन, फिश കൂന്തൽ, ഫിഷ് ഐറ്റംസ് പലതും. സ്പെഷ്യൽ ചേരണ്ടി ഉപ്പിലിട്ടത്, കച്ച്, മാങ്ങ, ക്യാരറ്റ്, ബീട്രൂട്ട്, പൈനാപ്പിൾ, ക്യാബേജ്, ഫിഷ് മോളിയം, कैरेट, बीटरूट, फिर चोचो, फिर क्या मुर्क अല്ലേ, मिक्सर, मुर्क, फिर लोटा, ऐसा सब आइटम है इधर। फिर चरंडी है, वो आइस बनाना है, आइसक्रीम है, बादाम, पिस्ता ऐसे डाल के देते हैं, वो अच्छा आइटम है। ये रोजा भाई रमज़ान का स्पेशल है ये, इधर अच्छा है। सब लोग आते हैं, दूर से आते हैं खाने के लिए। अच्छा आइटम है ये, साल में करते हैं। अभी 10-15 साल हो गया इधर चालू करके। अच्छा धंधा है, अच्छा आइटम है, अच्छा आदमी लोग आता है। ये इधर जा मुसलमान का, हिंदू का ऐसे नहीं, सब लोग आएगा खाने के लिए। अच्छा है, कोई लपड़ा का ऐसा बात नहीं है इधर। रमज़ान के इस फूड मेले में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी शिरकत करते हैं। इत्तेहाद, भाईचारगी का एक खुशनुमा मंजर भी देखने को मिलता है। दीगर मज़ाहिब के लोग भी माह रमज़ान के मुंतज़िर रहते हैं। रात देर तक जारी रहने वाले खान पान के इस मेले में सब मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं और मलाबारी जायकों से खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। शहर कन्नूर में मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से लोग आते हैं। ये एक टूरिज़म प्लेस है। चलिए चंद एक अफराद जो दीगर रियासतों से आए हुए हैं रमज़ान फूड फेस्टिवल में मौजूद हैं। बताइए मैडम, कहाँ से आप आए हैं? सूरत से आए हैं। कैसे पता लगा कि यहाँ पे फूड फेस्टिवल चल रहा है? इधर हमारा नेबर्स बोला ऐसे फेस्टिवल चल रहा है तो आया, खाने के लिए आया। सब पूरा अच्छा लगा। मुगलाई, चिकन मुगलाई, फिर कबाब, बीफ कबाब, ये सब खा रहे। बहुत ही बढ़िया लगा। यहाँ पे सूरत से भी अच्छा खाना। सूरत एक्चुअली इज़ फेमस ऑफ फूड, बट यहाँ पर आके हमें काफ़ी अच्छा लगा। हम टिक्का खा रहे हैं, चिकन मुगलाई खा रहे हैं, पराठा, बहुत ही मस्त है। बढ़िया खाना है, मुझे खाना बहुत पसंद है इसलिए मैं इधर आकर खाना खा रही हूँ। और चिकन और मुगलाई पीसेस बहुत टेस्टी है। बस
वही तो खाना तो हमारा फेवरेट है, तो रमज़ान में बहुत सारे खाना खाते हैं हम। अच्छा है, अच्छा फूड है, रमज़ान स्पेशल है। क्या रोज आता है, इनकम डेली है? डेली आता है। क्या खाया आपने आज? आज बीफ कबाब स्पेशल आइटम, चिकन कबाब पूरा अच्छा है। मौसम है ना, वो अच्छा मौसम है, रमज़ान के मौसम है ना, इधर अच्छा दुकान है, अच्छा खाना है, वो स्पेशल है, रमज़ान के स्पेशल है। चरंडी, कच्चे, कुब्बूस, शावरमा, कबाब सब मिलेगा। लगा ये रमज़ान में कैसा अच्छा स्टाइल है, स्ट्रीट फूड्स। हर साल यहाँ पर आते हैं रमजान में? Yeah, I'm stay here, Marakarandi, Kannur city also. Yeah, आता है, every year आता है। रमज़ान में हाँ इधर आएगा, अच्छा फूड। कितनी बार आता है रमज़ान में एक बार, अभी थोड़ा बाद में आ गया। कन्नूर के खानों के मज़ेदार होने की एक वजह ये भी है कि यहाँ एक ख़ास रिवायत मौजूद रही है। वो ये है कि हर घर में कोई न कोई दामाद मुस्तकिल मेहमान बनकर रहता है। दामाद की मेहमान नवाजी के लिए यहाँ नए नए खाने और जायके मंजर आम पर आए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो खाना है, यहाँ के खाना इतना रिच होने का एक कारण एक तो अरब इन्फ्लुएंस है, उसके अलावा हर घर में, मुस्लिम घरों में और ब्राह्मण घरों में, दोनों में एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर बिदाई, शादी के वक्त बिदाई होता है मर्द का, और हर घर में एक परमानेंट गेस्ट होता है, वो है दामाद। तो हर घर में एक परमानेंट गेस्ट दामाद जब होगा तो जाहिर सी बात है तो हर दिन उनको खाना खिलाना पड़ेगा नया नया। तो हर घर में एक नाश्ता, मिसाल के तौर पर सुबह में जो खाते हैं नाश्ता, वो एक नाश्ते का आइटम रिपीट होने के लिए 30 दिन कम से कम लगेगा, 30 या 40 दिन लगेगा। मतलब 40 अलग अलग किस्म का नाश्ता आपको सुबह में मिलेगा, वो भी बहुत हेवी नाश्ता है। पाक परवरदिगार का शुक्र है कि बंदों को बेशुमार नेमतें रमज़ान के महीने में हासिल हो जाती हैं। इस शुक्र और एहसान के साथ रोज़ा ये एहसास भी दिलाता है कि खुशियों में, मालो दौलत में, खान पान में उन लोगों का भी ख्याल रखा जाए जो गरीब, मुफलिस, लाचार, बेसहारा और मजदूर पेशा हैं। यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। इस वक्त हम मौजूद हैं कन्नूर के समंदरी साहिल पर। प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कन्नूर और तलचेरी में इबादतों के रूह परवर मनाजिर। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। नाजरीन, प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। हम मौजूद हैं शहर कन्नूर में। रमज़ान की हर इबादत बंदे मोमिन को अल्लाह ताला से करीब तर कर देती है। इस महीने की फजीलत, बरकत, कद्र व कीमत दीगर महीनों से कहीं ज़्यादा है। चलिए देखते हैं इस सिलसिले में उलमाए कराम क्या कहते हैं।
फजीलत क्यों न हो, रमज़ान को सारे महीनों पर चमकते हैं सितारे, रोज़ादारों की जबीनों पर। तहारत, इस्तकामत और सखावत किसको कहते हैं, हमें रोज़ा बताता है इबादत किसको कहते हैं। माह रजब से ही बंदगान खुदा माह रमज़ान की आमद के मुंतज़िर रहते हैं। जैसे जैसे ये महीना करीब आता है, दिल ही दिल में रूहानी खुशी हासिल होने लगती है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जब रजब का महीना आ जाता तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा से दुआ इस तरह करते थे कि ए अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान का मुक़द्दस महीना अता फरमा। अब ये मुक़द्दस महीना हम सब पर साया फिगर है। उलमा इकराम कहते हैं कि इस महीने के 3 अशरे 3 बड़ी कामयाबियों का ज़रिया हैं। अल्लाह ताला सुब्हान ताला हमके लिए है 3 अशरा दिया था, और एक अशरा में रहमत पूछने के लिए है। सब लोग अल्लाह का रहमत के याद कर खुदा को पूछते हैं, या अल्लाह हमको ये अशरा में हमारा रहमत दायम करने के लिए अल्लाहुम्मा रहमनी बोलते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाता है। इंशाअल्लाह काफ़ी है। और दूसरा अशरा के हमको मग़फ़िरत करने का पूछने का फ़ुर्सा है। आदमी अल्लाह को पूछते हैं, यार अब हमको बहुत खलल होती है, हमारा ज़िंदगी बहुत ख़राब हुआ, हमके लिए मग़फ़िरत दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बढ़ाता है, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली बोला आप इस अशरा में इंशाअल्लाह। तीसरा अशरा में हमको इत्क़ मिनन नार बोलते हैं। इसको मतलब अल्लाह का आदाब में हमको इत्क़ करना पूछने के लिए फ़ुर्सा है इंशाअल्लाह। आखिरी अशरा को अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको बहुत फुर्सा में दिया। एक रात में है खैरुम मिन अल्फ़ि शहर बोलता है। उस तो कुरान शरीफ को हमको बढ़ाता है खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। उस रात के लिए मुसलमान लोग तैयारी कर रहा है, ये फुर्सा मिलने के लिए। अल्लाह को पूछो तो देगा। നരകം വേണ്ട എന്നൊരാൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് ദുആ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, കുറേ കാലം അവൻ അങ്ങനെ തന്നെ ദുആ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നരകം അല്ലാഹു തആലാനോട് എനിക്കവനെ ഒഴിവാക്കി തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടും. അത് പ്രത്യേകം റമദാൻ മാസത്തിൽ പ്രത്യേകമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല എല്ലാ നിലക്കും പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ സഹായിക്കൽ കൊണ്ടും അവൻ്റെ മനസ്സ് സംശുദ്ധമാക്കൽ കൊണ്ടും നല്ലൊരു ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അല്ലാഹു തആല ഈ മാസത്തിൽ നമുക്ക് ഉപകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇനിയും എത്രയോ റമസാനും ലൈലത്തുൽ ഖദറും അതുപോലെ നല്ല നാളുകൾ നമ്മളിൽ ആഗതമാകാനും അല്ലാഹു തആല തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞുപോയ ഇപ്രാവശ്യമുള്ള എല്ലാവരും അല്ലാഹു തആല സ്വർഗ്ഗത്തിലാക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और हम मौजूद हैं केरला के शहर कन्नूर में। यहाँ पर हम कुछ देर के लिए मलप्पुरम ज़िले के पुलिकल शहर का रुख करते हैं। पुलिकल में इशारों की ज़बान में जुमा का खुतबा दिया जा रहा है ताकि गूंगे और बहरे भी इस्लाम का पैगाम समझ सकें। चलिए देखते हैं ये क्या कोशिश है। केरला के पुलिकल शहर की मस्जिदुर रहमा का मंजर दीगर मस्जिदों से कुछ मुख्तलिफ है। यहाँ अजान, जुमे का खुतबा, दर्स व तदरीस, ज़िक्र व अस्कार इशारों की ज़बान में होते हैं। जी हाँ, ये मस्जिद ख़ास तौर पर गूंगे और बहरों के लिए तामीर की गई है। यहाँ अजान के अलावा जुमे का खुतबा भी इशारों में बयान किया जाता है। हकीकत भी यही है कि अमाल का दारोमदार नियत पर है। खुदा की बंदगी में ज़बान मानी नहीं रखती। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर 5 वक्त की नमाज को फ़र्ज करार दिया है। सेहतमंद हों या माजूर, सभी पर नमाज फ़र्ज है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए केरला की गैर सरकारी तंजीम एबिलिटी फाउंडेशन ने गूंगे और बहरों के लिए इबादत के खुसूसी इंतज़ामात किए हैं ताकि ये अफराद भी अहकाम खुदाबंदी को समझें। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा रहें। माह रमज़ान की फजीलत और अहमियत को जानें। इस मस्जिद में क़ुव्वत गोयाई और क़ुव्वत समाज से महरूम ख़वातीन के लिए भी इबादत का अलहदा इंतज़ाम किया गया है। माजूर अफराद के लिए मजहबी तालीम के साथ
عصری تعلیم اور تربیت کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ اس ادارے میں 300 معذور طلبہ مختلف کورسوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان میں 200 طلبہ قوت گویائی اور قوت سماعت سے محروم ہیں۔ عام طور پر سماج میں معذور افراد کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ان کی خواہشات، جذبات، کیفیات کو سمجھنے کی کوششیں بہت کم ہوتی ہیں، لیکن کیرلا کے ایبلٹی فاؤنڈیشن نے دیگر سماجی اور مذہبی تنظیموں کے لیے مثال قائم کی ہے۔ معذور لوگوں کو سماج کی بنیادی دھارے میں لانے کی کوشش کی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کی رونقیں اور ہم موجود ہیں شہر تلچیری میں۔ فی الحال لیتے ہیں ایک بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پروگرام رمضان کی رونقیں میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی بازاروں کی رونق بڑھ جاتی ہے، خرید و فروخت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کیرلا کے بازاروں میں کیا کچھ خاص ہے۔ کنور اور تلچیری میں مسلمانوں کی بڑی تعداد ہونے کے سبب یہاں رمضان اور عید کی خریداری زوروں پر رہتی ہے۔ رمضان کی آمد سے قبل ہی چھوٹے بڑے کھجور میلے منعقد ہوتے ہیں۔ رمضان کے ابتدائی دنوں میں کھجور کا کاروبار زیادہ ہوتا ہے۔ کنور میں جاری ایک کھجور میلے میں تقریباً 60 اقسام کے کھجور فروخت ہو رہے ہیں۔ ماہ رمضان کے دوران شہر کنور میں گزشتہ 5 سال سے کھجور میلے کا انعقاد ہو رہا ہے۔ کھجور میلے کے منتظم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ٹیل می ہاؤ مینی ورائٹیز آف کھجورس آر ہیئر؟ വെറൈറ്റീസ് ഒരു 50 വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്, 50-60 വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. ഇത് ജോർദാൻ, പിന്നെ സൗദി, ഇറാൻ, ഇറാഖ്, അൾജീരിയ, ടുണീഷ്യ, അങ്ങനെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഈത്തപ്പഴങ്ങളാണ് മേളയിലുള്ളത്. റേറ്റ്സ് 90 rupees to 1 പിന്നെ 6000 rupees. کنور اور تلچیری شہروں میں کئی چھوٹے اور بڑے شاپنگ مالز موجود ہیں۔ شاپنگ مالز اور بازاروں میں رمضان اور عید کی خریداری بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ دکاندار کہتے ہیں
کہ پہلے 10 روزوں کے بعد عید کی خریداری کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے۔ امید پر دنیا قائم ہے کہ مصداق یہاں کے چھوٹے بڑے تاجر بھی اس مرتبہ نئے اسٹاک، نئے ڈیزائن، نئے فیشن اور پیٹرن کے ساتھ گاہکوں کے سامنے حاضر ہیں۔ This market is Kannur is first most complex in Fortlet complex. Gents is fully designing, reasonable rate, total market in Fortlet complex in Kannur. So now the Ramzan has come. Ramzan is come. Ramzan is a full festival in Fortlet complex. A lot of selection. All gents items in first in Kannur. Lot of selection and reasonable rate. Ramzan after 10 is full rushing the complex in Ramzan, Fortlet complex. वो अच्छा क्वालिटी और रमज़ान का 10 रमज़ान का बाद अच्छा इधर लॉट ऑफ बिजनेस आएगा। इस बार क्या एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन अच्छा है, उम्मीद है अच्छा बिजनेस होगा। अच्छा बिजनेस आएगा इधर। वैसे ये कन्नौर का एकदम पहला जेंट्स मटेरियल का दुकान है। कन्नूर और तलचेरी के बाजारों में मुकामी डिज़ाइन के अलावा शुमाली रियासतों के मलबूसात भी ग्राहकों की पसंद बने हुए हैं। यहाँ सऊदी और दुबई से दरामद की गई अशिया भी फरोख्त हो रही हैं। ईद के करीब आते ही बाजार में खरीद और फरोख्त अपने शबाब पर पहुँच जाती है। दूसरी जानिब रमज़ान के आखिरी अशरे में ताख़रातों और एतकाफ का खुसूसी एहतमाम होता है। इस तरह मलयाली मुसलमान खुशू व खुजू के साथ इस मुबारक महीने से इस्तिफादा हासिल करते हैं। रब ने इस माह को अफजल फरमाया सबसे बेहतर, इस माह की एक नेकी भी कहलाती है नेकी नाजरीन, ये था प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें का हमारा आज का एपिसोड जो केरला के शहर कन्नूर और तलचेरी से पेश किया जा रहा था। उम्मीद के पसंद आया होगा। सुबह 3 बजे हमारा लाइव शो सहरी टाइम देखना न भूलें। इसी के साथ मेज़बान रऊफ़ अहमद हल्लूर, कैमरामैन नागेश और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। रमज़ान आया।